Hello dear students, today we are going to start definite integration exercise 4.2. See question number 3rd, evaluate. First sub question, let I equal to integral of 0 to a 1 upon x plus square root of a square minus x square into dx. We see that here denominator contains x plus under root a square minus x square. So we put x equal to a sin theta, or anyone can put x equal to a cos theta also. So you can solve this question by substitution or by putting x equal to a sin theta or x equal to a cos theta. So here we put x equal to a sin theta. Now differentiating with respect to x on both sides, we get dx equal to a cos theta d theta. Now we need to change the limit also. When x equal to 0, this one, when x equal to 0, then sin theta is 0 upon a, that is 0, then theta equals 0, because sin 0 degree is 0. When x equal to a, so we get here a equal to a sin theta, that is 1 equal to sin theta. So sin theta is sin pi by 2, therefore theta equals pi by 2. So we get two new limits. When x equal to 0, theta equal to 0. When x equal to a, theta equals pi upon 2. If anyone has doubt, so you can solve it in details. Therefore, integral can be written as integral of 0 to pi by 2, new limit. Here value of dx, you know very well, dx equal to a cos theta d theta. So here a cos theta into d theta upon a sin theta, this is value of x, and square root of a square minus a square sin square theta. Now we see that a square common in the square root, that is a will be out because square root of a square is a. So a into under root 1 minus sin square theta, this will be a into under root 1 minus sin square theta after taking common a square. But 1 minus sin square theta is cos square theta. So we get here a into cos of theta. So therefore integral can be written as 0 to pi by 2 a cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस a cos थीटा, क्योंकि ये देखो ये सिंप्लीफाई करोगे ना ये इसको पूरा a स्क्वायर कॉमन, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इन द रूट and taking, so 1 minus sin square theta is cos square theta, so a square cos square theta becomes a cos theta taking square root into d theta. Therefore I equal to integral 0 to pi by 2 cos theta upon sin theta plus cos theta into d theta, because a is common and cancelled, and let it be equation first. Clear here? So we get equation 1 in terms of sin theta and cos theta only with limit 0 to pi by 2. So I equal to integral of 0 to pi by 2 cos theta upon sin theta plus cos theta into d theta, and let it be equation first. So according to the property, we can replace theta by pi by 2 minus theta. It is a property. You can check in the property list, in the formula list, first video of the definite integration. So replacing theta by pi by 2 minus theta, we get I equal to integral 0 to pi by 2 cos of pi by 2 minus theta. Wherever theta, we should write pi by 2 minus theta. Here sin pi by 2 minus theta plus cos pi by 2 minus theta into d theta. But cos pi by 2 minus theta is sin theta, and sin pi by 2 minus theta is cos theta, and cos pi by 2 minus theta is sin theta. So we get here integral 0 to pi by 2 sin theta upon cos theta plus sin theta into d theta, and let it be equation number 2. Now adding equations 1 and 2, we get 2i, देखो I plus I equal to 2i, and here denominator sin theta plus cos theta, here also sin theta plus cos theta, both are same. So we write here 0 to pi by 2 sin theta plus cos theta in this second equation, sin theta plus cos theta, here cos theta plus sin theta, but both are same. So adding numerator cos theta plus sin theta, that is sin theta plus cos theta upon sin theta plus cos theta d theta. So they will be cancelled to each other. So it is equal to 0 to pi by 2 1 d theta. Therefore
2i equal to what is integral of 1d theta? Theta only. And limit 0 to pi by 2. Now taking limit pi by 2 minus 0, we get 2i equal to pi by 2. Therefore, I equals pi upon 2 into 2. So it is equal to pi upon 4. So this question is very important for the competitive exam JEE and CET or other competitive exams also. You are solving here definite integration, which is very important for your further studies, for the higher studies. So differentiation and integration are very important in your life. So you should solve very seriously differentiation and integration and their applications, their higher level usage so much. So you can apply in the technology differentiation and integration. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इज कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट. इट इज वेरी इजी. मैथ्स इज फनी सब्जेक्ट and you should solve by easily, by tricks. Now see question number second. Let I equal to integral of 0 to pi by 2 log of tan x into dx. So here it is log of tan x into dx. Integral 0 to pi by 2. So let it be equation number first. Directly you can say replacing x by pi by 2 minus x. If you want to note down the property, so you should write here integral 0 to a fx dx. Note down integral 0 to a fx dx equal to integral 0 to a f of a minus x dx. Clear? So according to this property, you can replace x by pi by 2 minus x in equation first. Therefore, I equal to 0 to pi by 2 log of tan pi by 2 minus x into dx. So you should write dx also here. So we get it is equal to integral 0 to pi by 2 log of cot of x into dx. And let it be equation number 2. Don't forget to write here dx. Okay. So it is equal to integral 0 to pi by 2 log of cot of x dx, and let it be equation number 2. So according to the property, you can replace here. So we get two equations. Now adding equation 1 and 2, we get here I plus I 2i integral 0 to pi by 2 into log of tan x plus log of cot x into dx. देखो ऐसा नहीं सोचना कि हमने यहाँ पर dx को रिप्लेस नहीं किया. You should write here dx. It is with respect to x only. So 2i equal to 0 to pi by 2 log of tan x plus log of cot x into dx. It is equal to 0 to pi by 2 log of tan x into cot x into dx, because log m plus log n equal to log of m into n. So log of m into n, that is log of tan x into cot x, but tan x into cot x becomes what? Tan x into 1 upon tan x becomes 1. So 2i equal to integral 0 to pi by 2 log of 1 into dx, but you know very well log of 1 is 0. So 2i equal to integral 0 to pi by 2 0 into dx, or 0 into dx, so integral of 0 is 0. So everything is 0 here. Therefore 2i equal to 0. So therefore I equal to 0 upon 2, that is 0. And you have give the reason here log 1 equal to 0. So you have to give the reason log 1 equal to 0. So all of 0 here. So integral becomes 0. So these questions are important for the competitive exams as well as for board exams. Now see question number 3rd. Or before starting question number 3, you should revise the properties formulae first. टोटल देखो मैंने यहाँ पर कितने टोटल 8 प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टी लिस्ट में फॉर्मूला लिस्ट में बिफोर सॉल्विंग द एक्सरसाइज सबसे पहले मैंने प्रॉपर्टीज प्रोवाइड किया था. तो सभी स्टूडेंट को कोई भी लेक्चर प्रैक्टिस करने के पहले, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के पहले, या एक्सरसाइज अगर फुल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो उसको प्रैक्टिस करने के पहले सबसे पहले क्या करना है? प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूला. तो प्रॉपर्टीज में कौन सी? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला रिवाइज करना है? फॉर्मूला फॉर द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आल्सो. क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले की भी लिस्ट बहुत लंबी है. सो यू शुड रिवाइज ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला वेरी केयरफुली. आफ्टर दैट
डिफरेंशिएशन फार्मूला एंड देन इंटीग्रेशन फार्मूला, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन चाहे डेफिनेट हो या इनडेफिनेट हो, तो इनडेफिनाइट या डेफिनेट, तो डेफिनाइट इनडेफिनाइट में कोई भी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो फार्मूला तो इनडेफिनेट का ही लगेगा, और उसमें डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला बीच बीच में आता है, जहां पर हम लोग मोस्टली सब्स्टिट्यूट करते हैं, वहां भी डेरिवेटिव लगेगा। और अगर इनडेफिनेट या डेफिनेट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आ गया तो वहां पर भी डेरिवेटिव का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। तो ये रीजन है, इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि यू शुड रिवाइज फार्मूले फर्स्ट एंड देन स्टार्ट एक्सरसाइज और क्वेश्चंस। Let I equal to integral 0 to 1 log of 1 upon x minus 1 into dx. Therefore, I equal to integral 0 to 1 log of, here it is 1 upon x minus 1, that is x into 1. So 1 minus x upon x into dx, and let it be equation first. So replacing x by 1 minus x we get. और अच्छा है कि सभी एक ही प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन कंटिन्यू है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। तो I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर 1 माइनस, यहाँ पर क्या पुट करोगे 1 माइनस एक्स, तो ओपन द ब्रैकेट वी गेट हियर 1 माइनस 1 प्लस एक्स एंड डिनोमिनेटर बिकम्स this one 1 minus x into dx. So here 1 and 1 cancel in the numerator, so we get I equal to integral 0 to 1 log of x upon 1 minus x into dx. Let it be equation second. Now adding equation 1 and 2 we get, so I plus I equal to 2I, integral 0 to 1 common, and here it is log of 1 minus x upon x plus log of x upon 1 minus x into dx. Very tricky question, very interesting. So therefore 2I equal to integral 0 to 1 log of 1 minus x upon x into x upon 1 minus x, because log m plus log n, जैसा भी log of tan थीटा प्लस log of cot थीटा का क्वेश्चन आया था, सेम वैसा ही यहाँ पर क्या होगा log of 1 minus x upon x into x upon 1 minus x, because log m plus log n equal to log of m into n into dx. So here we see that 1 minus x going by 1 minus x, x going by x, so we get here log 1, but log 1 is 0. So 2I equal to integral of 0 to 1 log of 1 into dx, but log 1 equal to 0, so 0 into dx all of 0. So therefore 2I equal to 0, because log 1 is 0. Therefore I equal to 0 by 2, that is 0. So this is the final answer for question number 3rd. So easily you can solve, कोई भी doubt नहीं है. These questions are very important and very easy, very tricky. Now see question number 4. Let I equal to integral 0 to pi by 2 sin x minus cos x upon 1 plus sin x into cos x into dx, and let it be equation first. So again replacing x by pi by 2 minus x we get. तो देखो सभी क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट की ही प्रॉपर्टी आ रही है, फिर से रिपीट कर देता हूं. This property is integral of 0 to a fx dx equal to integral 0 to a f of a minus x into dx. So according to this property, you can replace x by pi by 2 minus x. Therefore, I equal to integral 0 to pi by 2 sin of pi by 2 minus x minus cos of pi by 2 minus x upon 1 plus sin pi by 2 minus x into cos of pi by 2 minus x into dx. But sin pi by 2 minus x is cos x and cos pi by 2 minus x is sin x. Similarly, in the denominator here it is sin cos x and it is sin x. So I equal to integral 0 to pi by 2 cos x minus sin x upon 1 plus cos x into sin x into dx, and let it be equation number 2. So what is the similarity in equation 1 and 2? We see that denominator is 1 plus sin x into cos x in equation first, and in second equation 1 plus sin x into cos x. So denominators are common, so you can add numerator without any problem. So adding equation 1 and 2 we get, therefore I plus I equal to 2I equals 0 to pi by 2. Adding numerator, so sin x minus cos x plus cos x minus sin x entire upon 1 plus cos x into sin x. So we see that here sin x going by sin x, देखो plus sin x and minus sin x 0, minus cos x plus cos x 0, so 0 upon something is 0, that is integral of 0 to pi by 2 0 dx.
तो 0 dx, इंटीग्रल ऑफ 0 इज 0, तो देयरफॉर 2i इक्वल टू 0, देयरफॉर i इक्वल टू 0, तो यहां भी आंसर 0 ही हो गया। देखो अभी तक हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी में आंसर हमें क्या मिल रहा है, 0। सिर्फ क्वेश्चन फर्स्ट ऐसा था जिसमें पाई अपॉन 4 आंसर मिला था, राइट। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बहुत ही ट्रिकी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको अभी से क्लिक करो, अभी से ध्यान दो कि हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है और शॉर्टकट में भी कैसे सॉल्व करना है, उसको ध्यान में रखते हुए इनके आंसर्स पर फोकस करो, इनके रिप्लेसमेंट पर फोकस करो, मेथड पर फोकस करो, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए और इमीडिएटली सॉल्व हो जाएगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन 5 जो यहाँ पर है कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 3 एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस एक्स होल रेज टू 5/2 इंटू डी एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, एल्जेब्रिक है। अब यहाँ पर न ट्रिग्नोमेट्री है और न ही लॉगरिथमिक है। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस ऊपर के सॉल्व किए फ्रॉम 1 टू 4 सभी क्वेश्चन कैसे थे, वो ट्रिगो से रिलेटेड थे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे। Now you can solve this algebraic question by simple method, by simple tricks. So I equal to integral 0 to 3 x square into 3 minus x whole raised to 5/2 into dx. तो अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि रिप्लेसमेंट वाली प्रॉपर्टी, तो हमें यहाँ पर उससे भी सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस एक्स, यहाँ 3 माइनस एक्स दैट इज 3 कट होगा, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड दे दिया है, तो मेथड लगभग वही है, सेम है, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अदर प्लेस पर भी यूज कर सकते हो, इसके लिए ये मेथड दिया। तो ये मेथड्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं। एक तो हम लोग रिप्लेस भी करते हैं कि रिप्लेसिंग x बाई 3 माइनस एक्स, तो हमें x के टर्म में यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिल जाएगा x रेज टू 5/2, मीन्स ये टाइप में मिलेगा, सिर्फ वेरिएबल होगा x, राइट। तो सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्ट हो जाएगा। सिर्फ यहाँ लिखोगे रिप्लेसिंग x बाई 3 माइनस एक्स, वी गेट i इक्वल टू समथिंग, और वो कंटिन्यूअस इस टाइप में x लेकर के सॉल्व करो। ठीक, एक मेथड हो गया। तो दूसरा मेथड क्या है जो सामने है, पुट 3 माइनस एक्स इक्वल टू टी, differentiating with respect to x on both sides, we get minus dx equal to dt, that is dx equal to minus dt. So when x equal to 0, t equal to 3, यहाँ पर सॉल्व कर लो रख के, when x equal to 3 then t equal to 0, तो न्यू लिमिट हो गई 3 to 0। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, therefore I equal to इंटीग्रल 3 to 0 3 माइनस टी होल स्क्वायर इंटू टी रेज टू 5। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है तो x की वैल्यू क्या होगी, t 3 माइनस टी, तो 3 माइनस टी होल स्क्वायर, और ये हमने t सपोज किया है तो ये हो गया t रेज टू 5, एंड वैल्यू ऑफ dx यू कैन चेक फ्रॉम हियर, इट इज माइनस dt। तो टेकिंग माइनस साइन आउट, तो माइनस साइन को आउट तो कर लिया, लेकिन अगर हम लोग यहाँ लिमिट को भी इंटरचेंज कर देते हैं तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। So interchanging limit and taking minus sign out, so this will be positive integral. So I equal to integral 0 to 3 minus t whole square, 9 minus 6t plus t square, and here into t raised to 5 as it is into dt, क्योंकि माइनस साइन अभी बाहर आ गया है और प्लस हो चुका है, राइट। तो I equal to integral 0 to 3 now multiplying by t raised to 5/2 in the bracket. So 9 into t raised to 5/2, 9 t raised to 5/2 minus 6t into t raised to 5/2, 6 into t raised to 7/2। देखो इसका पावर क्या है, 1, तो 1 plus 5/2 इंडाइसेस प्रॉपर्टी, 1 plus 5/2 that is 7/2 plus t square into t raised to 5 that is t raised to 2 plus 5/2, so 2 plus 5/2 becomes 9/2। क्योंकि इंडाइसेस प्रॉपर्टी क्या है, इफ द बेसिस आर सेम वी ऐड द पावर्स अकॉर्डिंग टू देयर साइन। अगर प्लस प्लस है दोनों में तो ऐड करो, अगर एक का पावर माइनस है एक का प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करो, लेकिन उनके बेस क्या है, सेम होने चाहिए, मीन्स वेरिएबल सेम होना चाहिए, इंटू डी टी। ठीक है, तो वी सी दैट हियर इंटीग्रल 0 to 3 9 t रेज टू 5/2 माइनस 6 t रेज टू 7/2 प्लस t रेज टू 9/2 इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेट ईच टर्म सेपरेटली एंड केयरफुल्ली। So I equal to, it is 9, 9 is constant taken out, integral of t raised to 5/2 is t raised to 5/2 plus 1 upon 5/2 plus 1, right?
but 5/2 plus 1 is what? 7/2. So this will be t raised to 7/2 upon 7/2. Whole limit 0 to 3 minus 6 as it is. Integral of t raised to 7/2. So t raised to 7/2 plus 1 upon 7/2 plus 1 becomes t raised to 9 upon 2 upon 9 upon 2. Limit 0 to 3 plus integral of t raised to 9 upon 2 is t raised to 9/2 plus 1 upon 9/2 plus 1, that is t raised to 11 upon 2 upon 11 upon 2, limit 0 to 3. Therefore I equal to 9 as it is. This is 7 upon 2, it will be out and becomes 2/7 क्योंकि अब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2/7. Now taking limit, first we put upper limit. So it is 3 raised to 7 upon 2 minus 0 raised to 7 upon 2. So 0 raised to anything is 0. 3 raised to 7 upon 2 minus 0. Minus 6 into, यहाँ पर क्या है देखो 9 upon 2, so becomes 2 upon 9. And here upper limit 3 raised to 9/2 minus lower limit that is 0. Plus यहाँ पर no constant, so 2 upon 11 will be out. Here 3 raised to 11/2 minus 0. तो ये तो रहा हमारा लिमिट सब्स्टिट्यूशन स्टेप. ये स्टेप क्या है? लिमिट सब्स्टिट्यूशन स्टेप. ये हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय टेकिंग कांस्टेंट आउट, सभी ब्रैकेट से कांस्टेंट को बाहर रख दिया, राइट, जो भी टर्म पहले से थे. अब जो हमारे यहाँ पर हैं रेशनल पावर्स ऑफ 3, उनको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. तो देखो 9 into 2/7 that is 18/7 into 3 raised to 7/2. इसको थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं कि इसमें देखो सभी में क्या है 7 upon 2, 9 upon 2 एंड 11 upon 2. तो सभी में जो पावर हाफ है उसको मैं बाहर कर देता हूं, पहले ब्रेक करता हूं, सेपरेट करता हूं. सो इट इज 3 क्यूब इंटू 3 raised to हाफ. देखो फिर से ऐड करोगे 3 प्लस हाफ तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 प्लस 1 7/2. फिर से पहुंच जाओगे यहाँ पर. तो इट कैन बी रिटन एज 3 क्यूब इंटू 3 raised to हाफ. देखो इजिली इसको 7 upon 2 को क्या करने का 2 से डिवाइड. 2 3 जा 6, 1 रिमाइंडर है तो 3 क्यूब इंटू 3 raised to हाफ. माइनस यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 2 जा 3 3 जा तो 2 2 जा 4 4 upon 3 इंटू देखो यहाँ 2 4 जा 8 तो 4 यहाँ पर कोसेंट क्या आया 4 तो 3 raised to 4 इंटू 3 raised to हाफ. मतलब इस क्वेश्चन में एक तरह से इंडाइसेस को जो इंटीजर पार्ट है उसको कैसे सेपरेट करें उसको भी यहाँ पर सीख सकते हो कि हमने इंटीजर पार्ट को सेपरेट कैसे किया. देखो 9/2 है 2 4 जा 8 तो 3 raised to 4 इंटू 3 raised to हाफ प्लस 2/11 एज इट इज. हियर 11 upon 2 तो 2 5 जा 10, रिमाइंडर आता है 1, कोसेंट है 5 तो 3 raised to 5 into 3 raised to half. Correct. तो we see that 3 raised to half, 3 raised to half, 3 raised to half in all. और लोएस्ट पावर ऑफ 3 क्या है 3 क्यूब. देखो यहाँ भी 3 क्यूब है, इसमें 3 raised to 4 है, इसमें 3 raised to 5. तो इजिली यू कैन टेक कॉमन 3 क्यूब इंटू 3 raised to हाफ. और क्या कॉमन है देखो इसमें 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है क्योंकि बाहर के जो कोफिशिएंट है इनके डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है 7 3 एंड 11 बट देयर न्यूमरेटर्स 2 4 एंड 18. तो 2 4 18 में मिनिमम जो कॉमन है क्या है 2 है तो हमने टेकिंग कॉमन 2 किया और ब्रैकेट के अंदर 3 क्यूब एंड 3 raised to हाफ. देखो 3 क्यूब इंटू 3 raised to हाफ कॉमन. तो रिमेनिंग पार्ट इज देखो ये कॉमन हो गया बोथ, इसमें से 2 निकल गया तो क्या बचा 9 upon 7 वी राइट हियर माइनस यहाँ से हमारा रिमेनिंग पार्ट देखो एक 2 यहाँ से आउट हो गया और यहाँ से 3 क्यूब एंड 3 raised to हाफ. तो यहाँ से 1 3 रिमेनिंग है 1 टाइम बट 3 गोइंग बाय 3 ये कट कर देगा इसको तो सिर्फ यहाँ पर 2 रिमेनिंग रह जाता है ओनली -2 प्लस 2 इज कॉमन एंड 3 क्यूब 3 raised to हाफ कॉमन. तो क्या रिमेनिंग रह जाता है 3 स्क्वायर या 9 तो 3 स्क्वायर इज कॉमन. ठीक है तो 1 upon 11 इंटू 3 स्क्वायर ये हो गया. तो चलो आगे का स्टेप सॉल्व करते हैं. इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 क्यूब इंटू 3 raised to हाफ इंटू अब यहाँ पर देखो 9/7 एज इट इज प्लस 1 इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 9 तो 9 upon 11 हियर एंड -2 एज इट इज. थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया हमने यहाँ 9/7 प्लस 9/11 -2. नाउ सिंप्लीफाई देयरफॉर I इक्वल टू 2 इंटू 3 raised to देखो
3 क्यूब इंटू 3^2 वैसे डायरेक्टली हम 3^7/2 कॉमन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। और दूसरा रीजन ये है एक्सप्लेन करने का कि समटाइम्स हमारे जो ऑप्शंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, वो इस फॉर्म में भी दिए रहते हैं कि पावर ऑफ 3 या अदर टर्म्स में। तो उनको हम ब्रेक कैसे करें, समझेंगे कैसे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो उसको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है कि सबसे पहले हम इंडाइसिस रूल को समझें और इसको ब्रेक कैसे करें, कॉमन कैसे करें। तो ये सब समझना बहुत ही जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा इसको ब्रेक करके एक्सप्लेन कर दिया है कि सभी इंडाइसिस रूल, पावर्स कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे ब्रेक करते हैं और कॉमन कैसे करेंगे या फिर से उनको मर्ज कैसे करते हैं, वो सब भी दिखा दिया हूं। तो देखो ये स्टेप हमारा हो गया था। देयरफॉर I इक्वल टू 2 एज इट इज 3 क्यूब इंटू 3^2। देखो इनको हम बोलते हैं बेस, 3 को, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर को इजिली ऐड कर सकते हो। तो 3 प्लस हाफ 3^7/2, जो कि हमारा 3^7/2, 3^7/2, 3^7/2 ये सभी में पहले से भी कॉमन था, ले सकते थे, और 2 2 2 भी कॉमन कर सकते थे। ठीक है, तो जिनको अगर जमेगा तो वो कर सकते हैं कॉमन और अपने से सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो भी सेम आंसर मिलेगा। 2 इंटू 3^7/2 हो गया। अब यहाँ पर 9 इंटू 11 99, 7 इंटू 9 प्लस 63, और 11 इंटू 7 हो गया 77, माइनस 77 इंटू 2, तो -2 इंटू 77 -154 अपॉन 77, क्योंकि इनका जो एलसीएम है 7 एंड 11 का क्या है 77। तो I इक्वल टू 2 इंटू 3^7/2 इंटू 99 प्लस 63 माइनस 154 अपॉन 77। Therefore I इक्वल टू 2 इंटू 3^7/2 इंटू 99 प्लस 63 becomes 162 माइनस 154 अपॉन 77। तो चलो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं इनको। तो I इक्वल टू 2 इंटू 3^7/2 इंटू 162 minus 154 becomes 8 and with same denominator 77, तो 8 upon 77। अब इसके बाद देखो इंटीजर पार्ट में 2 इंटू 8 becomes 16 upon 77 into 3^7/2, so I equals 16 upon 77 into 3^7/2। तो ये रहा इसका फाइनल आंसर। सो दिस आंसर कैन बी रिटन एज, अब इनके और डिफरेंट आंसर्स क्या हो सकते हैं वो भी देखो। ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ हमने सॉल्व कर लिया और टेक्सटुअल आंसर मैच हो गया, so it is our final duty and my duty completed. No, you should change the option. You can change your option, you can twist your option कि इसके कितने ऑप्शंस पॉसिबल हो सकते हैं और कैसे। देखो एक तो यहाँ से मैंने इसको मर्ज किया था 3 क्यूब इंटू 3^2, तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं, राइट। ये सब कुछ सेम सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो हमारा ये 3 क्यूब क्या है, एक्चुअल में होगा 27 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, या 27 इंटू 3^2। तो ये 27 इसमें है, इंक्लूडेड है। तो 16 मल्टीप्लाइड बाय 27 इंटू 3^2, तो 16 इंटू 27 करके देखोगे तो एक दूसरा नंबर यहाँ दिखेगा अपॉन 77। तो इस तरह से हमारा एक दूसरा ऑप्शन भी यहाँ बैठता है, तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हमारा ऑप्शन जो रहेगा उसके वे पर आएगा और उस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो 16 इंटू 27 अपॉन 77 इंटू 3^2। तीसरा ऑप्शन एक बैठेगा यहाँ पर कि 16 इंटू 27 इंटू √3 अपॉन 77। और समटाइम्स थोड़ा और कंफ्यूज करने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर हमारा 3^2 है, ये देखो यहाँ पर आकर के देख सकते हो 3^2। तो 3^2 एक्चुअल में क्या है √3, राइट। तो 2 इंटू 27 ये हो गया 54। तो चलो यहाँ पर जो भी है ये 54 आ गया यहाँ पर, क्लियर। और हमारा जो ये सॉल्व करने का मेथड है यहाँ, तो इंटू 8 तो रहेगा ही, राइट। और अभी जो √3 है, अगर हम √3 से यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो न्यूमरेटर हमारा क्या होगा, इंटीजर्स में कन्वर्ट होगा। तो ये नंबर हमें पूरा न्यूमरेटर फुल्ली इंटीजर मिल जाएगा, राइट। देखो 2 इंटू यहाँ से 27 है और यहाँ से 8 है,
और हमने रूट ऑफ 3 एक पहले से है, रूट 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया, तो एक 3 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 27 इंटू 3 इंटू 8 अपॉन 77 रूट ऑफ 3। ये इसका थर्ड या फोर्थ ऑप्शन जो भी सिलेक्ट कर सकते हो, ये भी पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस तरह से हमारे पास एक ही क्वेश्चन के 4 आंसर्स मिलते हैं, मतलब हम उसी आंसर को ट्विस्ट करके 4 टाइप से, 4 डिफरेंट टाइप से शो कर सकते हैं। सो दे कैन आस्क इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय डिफरेंट वेज। तो किसी भी ऑप्शन में वो लोग जा सकते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं क्या करेंगे, जो भी पेपर सेट करेगा वो किसी भी ऑप्शन को दे सकता है, उसको ट्विस्ट कर सकता है। तो इसके लिए क्वेश्चन को मैंने पूरा डिटेल्स बाय इंडाइसिस प्रॉपर्टी और उनके सभी रूल्स और उनको ब्रेक करके भी दिखा दिया है कि इस क्वेश्चन के हमारे कितने आंसर्स हैं और कितने वे से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है कि सभी ऑप्शंस हमें मालूम होने चाहिए और प्रैक्टिस करने के टाइम हमें सभी ऑप्शंस नोट करके रखना चाहिए। इन केस यू हैव एनी डाउट in the previous videos or in this video or in today's questions from 1 to 5, so you can ask without any hesitation in the comment section। और एक चीज और, अगर जैसे भी कोई कमेंट करना है, कुछ भी पूछना है, कोई क्वेरी है आपके पास, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो जहां तक पॉसिबल हो लेटेस्ट वीडियो पर कमेंट करें, जहां तक पॉसिबल हो लेटेस्ट वीडियोस पर कमेंट करें, जो अर्ली अपलोडेड हो उस पर कमेंट करें। अर्ली मतलब जो हमारा लेटेस्ट वीडियो हो, जैसे अभी आज का वीडियो है तो इस पे कमेंट कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो कौन सा, क्योंकि उस पर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, और अगर ओल्ड वीडियोस पर कमेंट करोगे तो वहां पर चेक करने में मुझे थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वीडियोस अभी मोर देन 150 ऑलरेडी अपलोडेड। तो चलो ठीक है, फॉर द रिमेनिंग क्वेश्चंस देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोस। थैंक यू।